ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ایم اے ٹی وی کشمیر ان فوکس۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنے اس پروگرام میں ہم آپ کو پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر، مقبوضہ گلگت بلتستان، وادی کشمیر، جموں لداخ سے متعلق خبریں اور جانکاریاں دیتے ہیں، لیکن ہمارا زیادہ فوکس پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان پہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس وقت گلگت بلتستان اور پی او جے کے جو ہے وہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہے اور لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ اب ٹی وی کے اوپر تو یہ خبریں دکھائی نہیں جاتی، نہ کوئی کوریج دی جاتی ہے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے لوگوں کو، نہ ان کے مسائل کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے، نہ کوئی ٹاک شو کیا جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں بہت سارے یوٹیوب چینلز جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں اور لوگوں نے خود سے جو ہے رپورٹنگ شروع کر دی۔ ایسی ہی کچھ رپورٹس ہم نے آپ کے لیے جمع کی ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ پہلے وہ دیکھ لیں اور اس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا اس وقت جو ہے آن گراؤنڈ سچویشن کتنی ڈیسپریٹ ہے۔ دیکھیے یہ ویڈیوز۔ بہت افراتفری ہے یہ ملک میں، غریب لوگوں کا جینا مشکل ہے، زندگی ان کی مشکل ہے، وہ مر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں دو حصے ہیں، مل رہا ہے نہ تو کوئی کھانے کی چیز نہیں، کوئی چیزیں اتنی مہنگی ہیں کوئی خرید نہیں سکتا، گھروں میں مشکلات میں لوگ پڑے ہیں، بہت تکلیف۔ سر اگر ہم دیکھیں دو حصے ہیں، ایک پاکستان کو ملا تھا، ایک انڈیا کو ملا تھا، مطلب ہو گئے تھے۔ سر اگر ہم بات کریں، ہم نے اپنے حصے میں سے گفٹ بھی کیا چائنا کو 10% حصہ۔ سر آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کتنی ڈیولپمنٹ کی ہے اور انڈیا میں کتنی ڈیولپمنٹ، کون اس ٹائم خوش ہے؟ سر انڈیا کے جو مسلمان ہیں ہمارے جاننے والے یا ان کے بات ہونے والی، وہ خوشحال ہیں، ان کو باہر سے دکھایا گیا تکلیف، اندر سے ان کو کچھ تکلیف نہیں ہے۔ ہماری اس کشمیر میں اندر سے تکلیف ہے، باہر سے لیبل لگایا گیا خوشحالی ہے، کچھ نہیں، اندر عوام کو بہت تکلیف ہے۔ سر یہ بات آپ بول رہے ہیں، ڈر نہیں لگ رہا؟ نہیں، ڈر لگ رہا ہے لیکن مرنا تو ہے نا، اس بات سے مرنا بہتر ہے کہ زندگی ایک غریب کی زندگی روڈوں پہ اسپتالوں پہ بھوک سے مرے تو ایک بار مار کے اللہ کے پاس جائے گا بس۔ سر ہماری حکومت جو ہے نا، وہ اگر دیکھے تو بارڈر ٹو بارڈر ٹریڈ نہیں کری، انڈیا سے کوئی سامان نہیں لے رہی، دبئی کے راستے سے آ رہی ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بیرونی ملکوں سے پیسے لے کے کھا رہے ہیں، ان کو نہ تو ان کو کچھ دے رہے ہیں نہ ان کو کچھ دے رہے ہیں۔ سر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ ان پہ کچھ عذاب ڈالے تو خود، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی نوکری کے لیے جاتا ہے 30 لاکھ روپے مانگتے ہیں، میرٹ پہ آتا ہے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، دوسروں کو سفارش پہ جو حکمران بنتے ہیں ایم ایل اے بنتے ہیں وہ پوچھتے ہی نہیں، بعد میں کیا ان پیچھے چکر لگاتے بس تھک کیا موڑ کے غریب گھر بیٹھ جاتا ہے۔ کیا اٹھتے تو ہیں تو پھر ادھر کی وہ جو وڈیرے لوگ ہیں حکمران ہیں وہ پولیس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ملے ان کو دبا دیتے ہیں، مارتے ہیں، ان کے بچوں کو مارتے ہیں، سکولوں میں نہیں چھوڑتے، روڈوں پہ، پھر کیا کریں؟ مہنگی تیل مہنگا، گیس مہنگی، آٹا مہنگا، مہنگائی سے عوام پریشان، حکومت کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام۔ بجلی، گیس، پیٹرول، آٹا، چینی، اشیاء خرد و نوش سب کچھ مہنگا۔ حکومت کی طرف سے سستا آٹا مل نہیں رہا، گیس دستیاب نہیں، عوام سراپے احتجاج ہیں۔ دارالحکومت مظفر آباد میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف خواتین بھی سراپے احتجاج ہیں۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ مختلف خواتین موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کس حد تک متاثر ہوئی ہے، کیا کہیں گی آپ؟ یہ کہیں گے کہ ہم عام گھریلو خواتین ہیں، مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہمارے خاوند مجبور ہیں، بے بس ہیں کہ یہ مہنگائی کو کہاں سے پکڑیں، بچوں کا گھر کے کون سے ہم کام چھوڑے کیا کریں، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، مجبوری کے عالم میں باہر نکلے، کم سے کم ہم آواز اٹھانا تو ہمارا حق ہے، بالآخر ہمیں گھروں سے نکلنا پڑا ہے۔ آج یہ عالم ہے کہ ہمیں گھروں سے نکل پڑے، کل کیا عالم ہوگا، اس سے بہتر سب عوام سے میں اپیل کرتی ہوں کہ آپ بھی آئیں اور اس کار خیر میں حصہ لیں اور آگے بڑھیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اس وقت وہ صرف غریب عوام کے لیے، اعلیٰ افسران کے لیے نہیں ہے وہ مہنگائی، ان کو ہر سہولت دی جاتی ہے، جبکہ وہ عوام کے ووٹ سے اٹھتے ہیں، وہ عوام کے ووٹ سے اقتدار میں آتے ہیں، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ ہمارے دروازے کھساتے ہیں، آ کے ہمارے پاؤں پڑتے ہیں، ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کی ہر ضرورت پوری کریں گے، ہم آپ کے وعدوں کے مطابق چلیں گے۔ جب وہ آ جاتے ہیں اقتدار میں اس وقت وہ وعدے کہاں جاتے ہیں، اس وقت وہ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کو ہر سہولیات دی جاتی ہے، گیس، بجلی، پانی، پیٹرول، ہر چیز ان کو فری، ان کو ملازم دیے جاتے ہیں، ان کو ہر سہولت دی جاتی ہے، جو کہ اربوں کے ان کے کاروبار ہیں، ان کے بچے بیرون ملک میں پڑھ رہے ہیں، ان کو ہر عیاشی ہے اور پس رہی ہے غریب عوام۔ یوٹیلٹی سٹوروں پہ آٹا آتا ہے، آئی ڈی کارڈ مانگتے ہیں،
वहाँ पे लाइनें लगी होती हैं, औरतें जलील और ख्वार होती हैं आटे और चीनी के पीछे, घी के पीछे। एक एक पैकेट उनको 2-2, 3-3 घंटे खड़े होके मिलता है। महंगाई इस कदर है कि अब हम लोगों की यानी कि इतनी परेशानी बढ़ गई है, बिजली महंगी है, बिल किस तरह अदा करेंगे, किचन किस तरह चलाएंगे, बहुत परेशानियां हो गई हैं। हम यही कहते हैं कि महंगाई को खत्म करें। ये जो टैक्स हमारा होता है वो कहाँ जाता है? वो इन लोगों की तिजोरियों में जाता है, जबकि नहीं जाना चाहिए। ये टैक्स हमारे ऊपर इस्तेमाल होना चाहिए, हम आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए इस चक्कर में। बिजली सस्ती करें, को आटा सस्ता करें, कोई शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आटा एक बिल्कुल इतना सस्ता होता था, आज वो बैग भी कितना महंगा हो गया है। तो अब गरीब किस तरह खाएगा खाना? सुबह आते हैं, लाइनों में लगते हैं, शाम को खाली वापस जाते हैं स्टोरों से। ना आटा मिलता है, ना चीनी मिलती है, और ना गैस आ रही है। तो लकड़ भी इतनी महंगी कर दी है, लकड़ 800 से 1200 रुपए मान कर दी हुई है। गरीब तो लकड़ भी नहीं जला सकता, गैस तो गैस रही। तो बिजली के बिल जो है ना अदा करने की किसी में सकत ही नहीं है। हम मजबूर हैं, सब मजबूर होकर निकले हैं। हम आज तक हम सड़कों पे नहीं निकले, तो ना हम बाहर निकले, ना कोई आवाज उठाई है। लेकिन इस वक्त पानी सर से गुजर चुका है, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। नाज़रीन, इसको मैं मौजूद हूँ छतर चौक के अंदर। महंगाई से जो है ना हमारे एक महीना काम नहीं लगता, और हम यहाँ पे बैठे हैं, फुटपाथ पे बैठे रहते हैं। और आटा यहाँ पे हर चीज कितनी महंगाई है कि मिलना मुश्किल हो चुकी है हर चीज को। और यहाँ पे 1-2 महीने लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। महंगाई का ये बहुत हम पे बोझ पड़ चुका है, और इतनी मुश्किलात हालात बन चुकी है कि अभी महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों ने काम कराने बंद कर दिए हैं। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये जो है लोग सब यहाँ पे मुतासर होकर बैठे हुए हैं। ये अभी कम से कम 100-200 आदमी दिन को होता है। इनको बिल्कुल खाने का टाइम भी, रोटी भी कोई इधर आके नहीं देता है इनको। काम आप कितने दिनों से नहीं मिला आपको? तीसरा महीना काम नहीं है। खरीदने वाले के लिए तो महंगाई है ही है, आप बेचने वाले हैं, क्या आप लोग भी मसनूई महंगाई से मुतासर हैं? हम बहुत ज्यादा मुतासर हैं। हम भी तो खरीद के लाते हैं, हम अपने होलसेलर से लाते हैं। जो चीज पहले दिन 100 रुपए की है वो दूसरे दिन 200 रुपए की। ऑलरेडी हम भी बहुत परेशान रहती है। सुबह अगर पहले 1 लाख रुपए का बिल बनता था, अब 2 लाख का बन रहा है। एक तो डॉलर्स की वजह से महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। जो आइटम 1000 रुपये था वो 10,000 रुपये पहुंच गया है। तो खरीदार आता है, रेट पूछता है और परेशान होकर वापस घर चला जाता है। मौजूदा दौर में जो हुकूमत है तो वो सिर्फ रेट देने की आदत के, मैं तो ये समझता हूँ वो रेट ही देने की आदत के, आए रोज रात को 100, सुबह उठो नया रेट होता है। डीजल की वजह से और जो गाड़ियों के एक्सपेंसेस हैं वो भी डबल हो गए हैं। इस वजह से पैसेंजर जो है बहुत कम हो गए हैं और सफर नहीं कर सकते, लोग किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं सरकारी मुलाजिम हैं महकमा तरक्याती इदारा मुजफ्फराबाद के, और गुज़श्ता 3 माह से इनको तनख्वाह भी नहीं मिली है। ये कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा फारूक साहब ने जो हमारे वज़ीर बल्दियात हैं उन्होंने हमसे 2 हफ्ते का टाइम लिया था, ठीक है ना। 2 हफ्ते तो गुजर गए, उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। बस कहते हैं आज करते हैं, कल करते हैं। हमारी आज दूसरे दिन हड़ताल जारी है। तो जिस तरह हमें चौथा माह आपको पता है बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है इस महंगाई के दौर में। तो आपको पता है मुलाजिम आदमी कितना अफोर्ड कर सकता है। हम वज़ीर आज़ाद कश्मीर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मामलात को इसको जो हल करें ताकि उनके नोटिस में लाया जाए कि हम छोटे मुलाजिम हैं, इसके अलावा हमारा कोई और रोजगार बिल्कुल नहीं है। मेरा ये काम है, छोटा मोटा काम है दर्जी करना। ये इस मतलब है लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि कपड़े सिलवाएं। मतलब है रोटी के लिए पैसे नहीं, कपड़े कहाँ से सिलवाएंगे? महंगाई तो है, ये ज़हर है। हमने मतलब है मजदूरी करनी है। लोगों के पास पैसे होंगे तो तब कपड़े लाएंगे, हम बनाएंगे, मजदूरी करेंगे, अपना कुछ पेट पालेंगे, बाल बच्चों का मतलब करेंगे। लेकिन मसला ये है बहुत ज़्यादा महंगाई है और इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, खासकर गरीब लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासर। अच्छा, मुझे बताएं लाइट की क्या पोजीशन है? लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। अब नाजरीन, ये तो आपने सूरत हाल देख ली। 3-3, 4-4 महीनों से लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही वहां पे, और उस पर ये हुआ है अब कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये फैसला किया है कि पेंशन खत्म कर दी जाएंगी। अब पेंशनें नहीं मिलेंगी और लोगों को, जो लोग रिटायर हो रहे हैं 25 साल सर्विस के बाद, उनको प्राइवेट सेक्टर की तरह जो है वो रिटायर कर दिया जाएगा और कोई पैसे वैसे उनको नहीं दिए जाएंगे। इस सारी सूरत हाल ने जो है एक नई लहर
مظاہروں کی प्रदर्शनों की पूरे POJK में शुरू कर दी है। और उस हवाले से शहर शहर ताजर अंजुमन जो होती हैं, ट्रेडर्स एसोसिएशंस और सिविल सोसाइटी, ये मिल के जो है मुजाहरे कर रहे हैं। इस हवाले से शहर शहर के छोटे छोटे से क्लिप हमने आपके लिए इकट्ठे किए हैं। 7 शहर का नाम भी है और फिर वो प्रदर्शन भी है। तो ये आप देखें, ये 2 मिनट की तकरीबन वीडियो है, 2-2.5 मिनट की। ये जरा देखें ये वीडियो। इन जालिम हुक्मरानों का यौम हम नेक्स्ट जो एहतजाज करेंगे पूरे आजाद कश्मीर के लोगों को इंशाअल्लाह ताला मुजफ्फराबाद असेंबली के घेराव की तरफ बुलाएंगे इंशाअल्लाह। अब जो पुंछ वाले, मीरपुर वाले, कोटली वाले, लुधियाना वाले, हजीरा वाले, धनकोट वाले मुजफ्फराबाद आएंगे इंशाअल्लाह ताला, और यहाँ इंशाअल्लाह ताला इन हुक्मरानों की अय्याशी को बेनकाब करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको। के खिलाफ इन जालिम हुक्मरानों का यौम एहतजाज, यौम हिसाब, इन जालिमों ने जी। तो नाज़रीन, आपने देखा ये हर शहर में POJK के प्रदर्शन हो रहे हैं और ये कल हुए हैं, कुछ परसों हुए। हालात इतनी ज्यादा खराब है और लोगों की कोई पूछ नहीं रहा, लोग यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं पूछ रही और कोई दूसरी गवर्नमेंट्स भी नहीं पूछ रही, और लोग बेहाल हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही लोग क्या करें। लिहाजा एक तंजीम है ऑल पार्टीज पीपल्स राइट्स अलायंस, ये एक अलायंस बना है मुख्तलिफ पार्टियों का और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का। इन्होंने नाज़रीन रावला कोर्ट से इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस की जानिब लॉन्ग मार्च शुरू किया है पैदल। यानी कि आप सोच लें कि ये रावला कोर्ट से ये लोग चले हैं और ये लोग अब इस्लामाबाद की तरफ जो है रवाना हैं और पैदल जा रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग हैं इसमें। मैं चाहूंगा कि उसका एक आपको क्लिप दिखाया जाए, ये देखिए जरा क्लिप। रियासत आपकी हैसियत को मिटाया जा रहा है, नाम नहाद मर्दम शुमारी के जरिए हमारी शनाख्त को मिटाया जा रहा है। इन चालाकियों के खिलाफ, इन मक्कारियों के खिलाफ रावला कोर्ट के बगैरत लोग आज सरापाई एहतजाज है। इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, रास्ते में बुलंदरी के बगैरत लोग, थोराड़ के बगैरत लोग, मंग और
नक्का बाजार के बागरत लोग हमारे साथ शामिल होते जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इन अज़ाइम को, इन हुकूमती हथकंडों को जूते की नोक पे मारते हुए शीशा फुलाई हुई दीवार बनेंगे और अपनी रियासत को किसी कीमत पे तकसीम नहीं होने देंगे, इसकी हैसियत को किसी कीमत पे खत्म नहीं होने देंगे। और ये जो नाहम नहाद मर्दमशुमारी का यहाँ पे ढोंग रचाया जा रहा है, आज रामला कोट के लोगों ने उस मर्दमशुमारी को जूते की नोक पे मारा है और ये साबित किया है कि इस रियासत में हमारी मर्जी चलेगी, ये रियासत हमारी है और इसमें हुकूमत भी हम करेंगे, इसमें मर्जी भी हमारी चलेगी। आज रावला कोट के ताजरों ने गैरत का सबूत दिया, ट्रांसपोर्टरों ने गैरत का सबूत दिया और खाई गले छोटा गला पंजासा के लोगों को भी सलाम पेश करते हैं। माज़रत हज़रत, पानियाला से भी लोग काफिले रवाना हो चुके हैं, छोटा गला से भी काफिले रवाना हो चुके हैं। आगे रास्ते में ये सब काफिले इस रैली का हिस्सा बनेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी गैरत का सबूत देते हुए, अपनी शानदार रवायात को जिंदा करते हुए आज इस्लामाबाद की तरफ चले। पीपल राइट्स फोर्स के ज़ेर इत्मीनान 21 शान काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुका है, जिसका मकसद बिजली पर नाजायज तकसीम, जिसका मकसद आटे पर फिजूल सब्सिडी दी जाए। हम समझते हैं कि रावला कोट और जुम्मे ताजरान ने जो काल दी है, इस पर तमाम ताजरान अपनी दुकानें बंद कर इस अजीम शान काफिले में शरीक हो जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा ये मुजाहरे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं। नाज़रीन, ये जितना कुछ इस वक्त हो रहा है, इसमें सिर्फ एक चीज की कमी है और वो है द राइट डायरेक्शन। इस वक्त लोग एहतजाज कर रहे हैं, आटा नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तनख्वाह नहीं मिल रही, ये सारा कुछ, ये सारे जो है इकोनॉमिक इश्यूज हैं और ये इकोनॉमिक डिमांड्स हैं। ये जब तक पॉलिटिकल डिमांड्स में कन्वर्ट नहीं होती, उस वक्त तक ये सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। और सिस्टम जो है वो कॉलोनियल है, यानी हम लोग जो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के हम कॉलोनी हैं, उनके गुलाम हैं, उनकी नौ आबादी है। लिहाजा ये तमाम जो नारे हैं ये अपनी जगह पे एक हकीकत को जरूर बयान कर रहे हैं, लेकिन इसकी सियासी सिमत कोई नहीं है, जिसकी वजह से इसका कोई फौरी जो है नतीजा नहीं निकलेगा। अलबत्ता अगर ये ही तहरीक अपने मुआशी मुतालबात के साथ सियासी मुतालबात जोड़े, जिसमें सबसे अहम मुतालबा पाकिस्तानी फौज का पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से इनखला है और उसके बाद भारत के साथ जो है वो शमूलियत है, तो एक पॉलिटिकल प्रोग्राम सामने रख के जो है इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके तो जम्मू कश्मीर में दाखिल होंगे। ये आतंकवादी नहीं होंगे, ये वो लोग होंगे जो भूख से सताए हुए हैं और ये इसलिए भी जम्मू कश्मीर में नहीं शामिल हो रहे
کہ یہ کوئی سیاسی ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں. بھوک سے تنگ جب انسان آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا. تو ایک آج واقعہ ہوا ہے ایسا جس میں ایک شخص ہے جن کا نام ہے رضا، یعنی انہوں نے عامر رضا جو ہے انہوں نے سیالکوٹ سے وہ گرداسپور سیکٹر میں انڈیا میں داخل ہوئے. بارڈر سیکیورٹی فورس انڈیا نے ان کو اریسٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں شامل ہوا ہوں. یہ ان کی تصویر ابھی آپ نے جھلک دیکھی ہے، دوبارہ دکھائیں یہ تصویر پلیز. یہ وہ شخص ہے جی، اور سیکیورٹی کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو ذرا کالا کیا ہے تاکہ پہچان نہ سکے ان کو. لیکن یہ آج پاکستان سے پہلا ایک اکنامک ریفیوجی جو ہے انڈیا میں داخل ہوا ہے. میں پچھلے تقریباً 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے اکنامک ریفیوجیز جو ہے پاکستان اگر کلیپس کرتا ہے تو وہ انڈیا کی طرف رخ کریں گے، جہاں جہاں سے ان کو رستہ ملے گا، لائن آف کنٹرول سے، راجستھان سے، یہ جو آپ کا چھم جوڑیاں سے، یہ سیالکوٹ سیکٹر سے، ہر جگہ سے. لہذا اس کو اب ایڈریس کرنا میرا خیال ہے بہت ضروری ہے، اور انڈین گورنمنٹ کو بھی اس حوالے سے اپنی پالیسی جو ہے اس کو واضح کر دینا چاہیے. ناظرین، آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ. اب آپ سے ملاقات ہوگی ٹیوزڈے کو شام 6:30 بجے لنڈن ٹائم. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ڈاکٹر امجد یو مرزا کو اجازت دیجیے. جے ہند.